This meeting is being recorded. Good afternoon, everyone. Thank you so much for taking the time out to be a part of this webinar today. We really appreciate that you've taken so much interest and you have joined this webinar. Uh, I think the topic we are going to discuss today is extremely interesting and engaging, I'm sure. But before we delve deeper into the topic, I would like to share a little bit about Muktangan. We are a unique community-owned educational project primarily based in Mumbai's G South Ward, where we offer child-friendly, inclusive, and holistic education, leveraging the potential of the community. And this is what we are here to talk about, the potential that resides within each and every member of the community, where parents also form a very important part of this entire process. We continue to impact more than 4,000 children from underserved communities. More than 900 community members have been developed and placed through our teacher education program. Uh, and we are also impacting more than 75,000 children and more than 5,000 teachers and teacher educators through our various outreach projects. Before we delve into the topic, I would like to share some rules for the participants who are present here today. We request you to stay on mute at all times. Please do use the chat box to share your feedback. And if you have any questions, please do post it in the chat box because we will be taking up the questions in the last 10 minutes of the webinar. And do mention your name and your organization's name because that would really be very helpful to us. Please do stay with us till the end. And we thank our participants once again for joining us here, as well as those who are watching us live on YouTube. So, involving all the stakeholders in the learning process, keeping the child's needs at the center of it all is very, very important. The ways in which we engage our parents, tap their leadership, and create a nurturing environment is something that we all need to constantly reflect upon. And we are so happy that we have our very, very distinguished speakers today. And I'd like to take this opportunity to introduce our speakers who will throw more light on this topic. Mr. Sunil Somnath Pangre has a master's degree and a master's in education and is currently the headmaster of Dharavi Kala Kila Municipal Upper Primary Marathi School. Sir has received several awards and accolades. To name a few, Sir received the Adarsh Mukhyadhyapak Mahapaur Puraskar, the Mayor Award in 2011-12, and was awarded the Savitribai Phule Gaurav Award by Stree Sansadhan Kendra, Brihan Mumbai Municipal Corporation. The exemplary work in these municipal schools was also published in the book by UNICEF under the S4D project. Sir has been instrumental in participating in the preparation of the School Management Committee Guidebook at SERT Pune, for which he also received an opportunity to act as the state-level spokesperson. He was invited to be a resource person for the training on inclusive education, in which all district representatives across Maharashtra participated. The School Management Committee also received an opportunity to participate in Education Wari, an initiative of the Maharashtra Government Education Department organized at Mumbai, where parents gave information about the school processes. Thank you so much for being a part of this webinar today, sir. Mr. Smithan is the Program Director for Pratham's Early Childhood Programs. His key work includes program design, development of content, and training frameworks for a broad range of early childhood interventions. Mr. Smithan has been with Pratham since 1996 and has led Pratham teams in the states of Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh. He holds a master's degree in public administration and a certificate of proficiency with distinction on the best start in life, early childhood development for sustainable development offered by the SDG Academy. Welcome, sir. Thank you for being a part of this webinar today. Ms. Manisha Nikam. Ms. Manisha has been a part of Muktangan since 17 years. She began her journey as a teacher trainee and then climbed the ladder as a preschool teacher, supervisor, and now as the school faculty for grades 5th to 8th in Globe Mill Passage Municipal English Medium Secondary School.
We welcome you, Ms. Manisha. Thank you for being a part of today's webinar. Mr. Narendra Bothre is representing the most crucial stakeholder in today's webinar. He is a Muktangan school parent and also a tutor professionally. He has been actively involved in the school processes for the last 8 years. Welcome, sir. Thank you for being a part of today's webinar. I now invite Ms. Thanashree Yedandi, schools leader at Muktangan, to kindly take this discussion forward. Thank you, Shruti. Thank you for the introductions. Good afternoon, everyone. A very warm welcome to each and everyone present here for the webinar on parental engagement. I once again welcome our esteemed speakers, Mr. Smithin Britt, Mr. Sunil Bhangre, sir, Ms. Manisha Nikam, and Mr. Narendra Bothre. Well, parental engagement या पालक प्रतिबद्धता, ये शब्द सुनते ही पहली छवि जो दिमाग में आती है, the first image that comes to our mind, honestly speaking, for all these years is parent teachers meeting. Is parents role restricted to only parent teachers meeting? क्या पेरेंट की रोल जो है सिर्फ पालक सभा तक ही नियमित है, लिमिटेड है, या इसका और भी व्यापक दायरा है? इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज का हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। और वेबिनार का पहला क्वेश्चन हमारे सारे स्पीकर्स के लिए है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंटल एंगेजमेंट? पेरेंटल एंगेजमेंट का अर्थ क्या है? मूव ऑन टू मिस मनीषा। Thank you. Parenting engagement means engaging parents in meaningful ways. I feel parents and school working together to support and improve learning development of children, and that is I feel it's a parent engagement. Thank you for sharing your thoughts, Manisha ji. Sunil sir ji, Sunil Bhangre sir ji. थोड़ा सवाल फिर से मैडम, क्वेश्चन। हाँ, पालक प्रतिबद्धता या पेरेंटल एंगेजमेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंटल एंगेजमेंट? मेरा मानना तो यही है मैडम कि जो बच्चा स्कूल में आ रहा है, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, ये बच्चा हमारा स्कूल का होता है और उसके साथ पेरेंट्स का तो है ही, उन्होंने जन्म दिया तो उनका है, लेकिन वो स्कूल का होता है। अगर दोनों मिलकर उस बच्चे की परवरिश के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वही एंगेजमेंट होती है, और वो एंगेजमेंट बच्चा जब तक पढ़ रहा है उसके आगे भी वो हमेशा के लिए होती है। ये मेरे ख्याल से पेरेंट्स एंगेजमेंट। थैंक यू सुनील सर जी, आपने बहुत अच्छे से व्यक्त किया अपनी भावनाएं, या आपने इस पर बहुत अच्छा रोशनी डाला है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे पेरेंट मिस्टर नरेंद्र जी। Good afternoon, madam. Are you audible? Yes, you are audible. वीडियो अगर आप ऑन कर सकते हैं तो। Okay, कर दो। Hello. Okay, can I start? Okay. अगर कोई भी शिशु का अगर डेवलपमेंट होना चाहता है तो वो स्कूल पर डिपेंड ना रहे, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स उनके साथ रिलेटेड रहते हैं, तो पेरेंट्स को हर एक चीज पता होती है। उसकी पहली शिक्षा घर से स्टार्ट होती है, तो उसका एंगेजमेंट होना जरूरी है। थैंक यू फॉर योर व्यूज। सो आई थिंक आपने जो सवाल पूछा है, मैं उसके बारे में काफी सोच रहा था कि रियली पेरेंटल एंगेजमेंट क्या है। उससे पहले आई थिंक ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा या कहना चाहूंगा कि क्या है जो पेरेंटल एंगेजमेंट नहीं। सो आई थिंक व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी इयर्स is not the real meaning of parental engagement. साल में एक बार, महीने में एक बार, 1 घंटे के लिए पेरेंट को बुला के स्कूल में उनके बच्चों को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसके बारे में बात करना, ये इसका मतलब मेरे हिसाब से पेरेंटल एंगेजमेंट नहीं है। अगर मेरा बच्चा स्कूल में सीख रहा है तो मेरे साथ पार्टनरशिप होनी बहुत जरूरी है, which I think is completely missing in the current scenario, and especially मैं कई स्कूलों में घूम चुका हूँ, प्राइवेट स्कूलों में जा चुका हूँ, सरकारी स्कूलों में पेरेंटल मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ। मुझे उसमें ये दिखता है कि
कई जगह पे तो लिखा रहता है कि पेरेंट्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। ये जो मेंटालिटी है, ये जो स्कूल का थॉट प्रोसेस है, ये पेरेंटल एंगेजमेंट नहीं है। सो क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा धनश्री जी थोड़ी देर बाद और बताना चाहूंगा। बट पेरेंटल एंगेजमेंट पार्टनरशिप होनी चाहिए जो दोनों स्कूल और परिवार को जोड़ के बच्चों के परवरिश, बच्चों के शिक्षा, सभी मामलों में एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ने वाली पार्टनरशिप है। थैंक यू। So, what are your experiences as a school faculty when it comes to parental engagement? तो कौन से स्ट्रेटेजीज है जो आप यूज करते हैं पेरेंट्स को एंगेज करने के लिए, और ऐसे कौन से तरीके हैं जहां पर पेरेंट्स का पोटेंशियल टैप किया जा सकता है? आपका अनुभव ज्यादा होगा क्योंकि आप स्कूल फैकल्टी है, तो हम चाहते हैं कि आप एड्रेस करें। Thank you, Dhanashri ma'am. Before proceeding to a question, let's have a poll. एक अच्छा, poll question लेते हैं। ठीक। तो Yes, I'm sharing the link in the chat box. सबके चैट बॉक्स में ना लिंक आ गया है, श्रुति जी ने शेयर किया है। आप उस पर टाइप करेंगे या उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शंस आएंगे, प्लीज उस पे क्लिक कीजिए। या क्लिक कर दीजिएगा। काफी सारे लोगों ने जवाब भी दे दिया है। बहुत सही, बहुत सही। थैंक यू बढ़िया। सो मच, थैंक यू सो मच। और भी दे रहे हैं। सरस्वती जी का कहना है, व्हेन पेरेंट्स आर एंगेज्ड इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू डू वेल इन स्कूल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सभी ने पार्टिसिपेट करने के लिए। और हम देख सकते हैं कि हमें इसका आंसर अभी मिल गया है कि मैक्सिमम चिल्ड्रन जो वक्त बिताते हैं वो घर में बिताते हैं, पालकों के साथ बिताते हैं। तो हमारे यहाँ पेरेंट इन्वॉल्वमेंट के बहुत से स्ट्रैटेजीज है जो हम मुक्तांगन में करते हैं, क्योंकि पेरेंट हमारा एक अहम हिस्सा है स्कूल का, क्योंकि उनके बिना स्कूल या बच्चा, हमारा ये जो ट्रायंगल है, हम नहीं आगे बढ़ सकते। मैं कुछ स्लाइड्स प्रेजेंट करना चाहूंगी जो हम पेरेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो हम करते हैं स्कूल में, तो उसके लिए थोड़े उस पर रोशनी डालेंगे। The second slide, please. Yeah. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि मुझे थोड़ा गौर करना है, धनश्री मैडम ने स्टार्टिंग से ही कहा था कि पीटीएम कैसी होती है। तो जो मुक्तांगन में हम पीटीएम लेते हैं, इट इज वेरी इंटरैक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल पेरेंट टीचर मीटिंग्स वेयर whatever the child is learning in school, in the PTM our parents are taking the demonstration, our teachers are taking the demonstration and exactly our parents are doing the way children are learning. So जिस तरह से बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं उसी का अनुभव पेरेंट लेते हैं, and then it is helping them to support them in their academics. दूसरा चित्र हम देख रहे हैं कि जिसमें बच्चे रोड पे है, कुछ पेरेंट है, टीचर्स है। सो वॉलंटियरिंग इन द क्लासरूम एंड फील्ड ट्रिप्स, जो जैसे बच्चा घर के साथ साथ स्कूल में भी आ रहा है, तो बहुत अहम हिस्सा है कि अगर पालकों को स्कूल में, हम स्कूल की हर एक चीज में जिधर जिधर पालकों को हम सहभाग कर सकते हैं, तो उससे उनका लर्निंग इनहेंस होगा और उनको लर्निंग में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट मिलेगा। सेकेंड स्लाइड प्लीज।
we have so many activities in school. For that we search for the people outside that we need this, we need that one, but parents are the great resource. हमारे पास ही बहुत सारा खजाना है, पर हमें उसकी पहचान नहीं है और हमें इसकी पहचान करनी चाहिए. सो वी हैव पेरेंट एज अ रिसोर्स पर्सन. पेरेंट इन्वॉल्वमेंट में जब भी कुछ भी एक्टिविटीज होते हैं, प्री स्कूल में हो, प्राइमरी में हो, जिस तरह से बहुत सारे अपने पेरेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स है, पुलिस है. सो जब भी हम कुछ भी एक्टिविटी है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो कि कम्युनिटी हेल्पर्स है, सो एज पेरेंट हमारे पास है कम्युनिटी हेल्पर्स, तो वो आके उनके अनुभव शेयर करते हैं. सो जैसे हर एक क्षेत्र में पेरेंट रहते हैं, तो बाहर रिसोर्स ढूंढने से अच्छा अपने घर में ही है रिसोर्स, तो उसका हम लर्निंग में बच्चों के फायदा तो होगा ही, पर हमारी जो बॉन्डिंग है बच्चे के साथ, लर्निंग में बच्चे को आगे डेवलपमेंट करने के लिए वो और ज्यादा बढ़ेगी. हेल्पिंग विथ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस, एनुअल डेज, प्रोजेक्ट डे. स्कूल के इवेंट सिर्फ अपन स्कूल के इवेंट ना होके हमारे इवेंट्स है. हर एक इवेंट में पेरेंट्स को एज पार्टिसिपेशन एंड उनको इन्वॉल्व करना. एनुअल डेज में पेरेंट्स प्रोग्राम्स करते हैं, डांस करते हैं. प्रोजेक्ट डे में खुद पेरेंट्स प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और बहुत वेरियस एक्टिविटीज होती है, क्योंकि स्कूल एक घर है और वो हम तीनों मिला के हम आगे लेके जाते हैं. So it is very helpful to feel that as the school functions and the school programs are our programs. Next slide, please. So parents play a very vital role. So we have educational workshops for our parents. As you can see, the learning happens everywhere, and we have proficiency classes for the parents, we have yoga classes for the parents, and the educational how from fun way we can learn. So we have so many educational workshops for the parents. And as exactly we have seen in the poll that child spends most of the time at home. So बच्चा घर पे कैसा है, उसका घर का वातावरण कैसा है, क्योंकि बच्चा सिर्फ स्कूल में ही नहीं आता है, पर उसके घर का भी वातावरण से उस सामाजिक और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का उसके ऊपर असर पड़ता है. एकेडमिक्स ही अच्छा रहने से कुछ नहीं होता, पर जिसको भी दिक्कत होती है, किस तरह से होता है, उसके लिए होम विजिट होना बहुत जरूरी हो. और मुक्तांगन में ये एक बहुत अच्छा पड़ाव है जो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है, कि we are sensitized, the teachers are sensitized, and we also get to know that how and from where our children are coming, what is their background. So it helps us and helps our teacher to interact and to support our children. Next slide, please. So we have children, we have like regular children, we also have children with special needs. So as a special need parent, the parent may feel isolated that my child is like this, but we have created a parent support group for our children with special needs, where from all our schools these parents come together, and we have created a special support group for them, where they come, they share the strategies that they are doing, their learnings, what they can do, which strategy or which techniques are going to help, and our teachers are also there for them to support. लाइब्रेरी, ये नाम तो कुछ नया होगा. हमने लाइब्रेरी तो सुना है, हर स्कूल में होती है, पर मुक्तांगन मोहल्ला लाइब्रेरी, जिसे बच्चा तो स्कूल में आ रहा है, बच्चे को तो एक्सेस मिल रही है, हमारे पेरेंट्स भी बुक्स लेते हैं, बुक्स रीड करते हैं, पर हम मुक्तांगन के बच्चों के और पेरेंट्स के अलावा दूसरे पेरेंट्स, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन,
सभी उसका उपभोग ले सके, इसलिए मुक्तांगन मोहल्ला लाइब्रेरी स्टार्ट की है। और ये बहुत ही हमें कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि ये दिस इज इनिशिएटेड बाय आवर पेरेंट्स। हमारे ही स्कूल के पेरेंट्स ने as volunteers they came forward and they took this bunch of books in their areas, in their mohallas, and they kept it, and then so many parents and children read it. So then learning doesn't happen only in school, so it is beyond that. So this is a very great parent engagement that we do in Muktangan. थैंक यू सो मच। ऐसे बोला जाए तो बहुत कुछ है, पर वक्त की पाबंदी है इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकते। बट रियली पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम ऑफ अ स्कूल, और हमारे पास ही वो सपोर्ट सिस्टम है, पर हमें उसको किस तरह से उसके साथ बच्चे के लर्निंग में आगे बढ़ना है वो हमें सोचना है। थैंक यू सो मच। Thank you, Manisha Madam, for sharing amazing initiatives to connect our most important stakeholders, right, to the school. So, let's move. This takes us to the next question. Like, there are, आपने पूरे ओवरऑल स्कूल के बारे में चित्रांकन किया है, तो हमारी क्रूशियल स्टेज है जो अर्ली चाइल्डहुड, वो जो बहुत ही इग्नोर माना जाता है, तो वहां पे हम स्मितिन सर के तरफ मुड़ना चाहेंगे कि हमारे अर्ली इयर्स प्ले अ वेरी फंडामेंटल रोल इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन। तो आजकल काफी सारे पॉलिसीज आए हैं ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, निपुण भारत है, जो हाईलाइट करता है कि रोल, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लर्निंग और उनके डेवलपमेंट में। सो व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस इन द अर्ली इयर्स व्हेन इट कम्स टू पेरेंटल एंगेजमेंट्स, एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू नर्चर फैमिली स्कूल पार्टनरशिप? नितिन जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि जो मनीषा जी अभी बता रही थी, जो एग्जांपल्स वो बता रही थी कि कितने प्रयास करने पड़ रहे हैं पेरेंट्स को समझाने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और लाइक यू कुड सी, होम विजिट कर रहे हैं, पेरेंट को स्कूल में बुला रहे हैं, तमाम प्रयास करने के बाद पेरेंट्स को कुछ समझ में आता है कि हम क्या कर सकते हैं। आई फील कि ये अच्छी बात है कि अभी निपुण के वजह से या भारत के नए शिक्षा की नीति के वजह से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को इम्पोर्टेंस मिल रहा है, उसमें भी पेरेंटल एंगेजमेंट को लेके बातचीत शुरू हुई है। मुझे जो चैलेंज धनश्री जी समझ में आता है, तमाम प्रदेश के अलग अलग भागों में जाकर घूम रहा हूँ, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, तो उससे जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि करिकुलम जो है हमारा, या जो भाषा हम स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है, और वो आम माँ बाप के लिए, आम पेरेंट्स के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है। स्पेशली हम में से बहुत सारे लोग जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लोग हैं, उस ये बात मेरी जल्दी से समझेंगे, क्योंकि हम जो शब्द यूज करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, अगर आप हिंदी में देखो तो और भी बम की तरह वो वर्ड्स है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास। ये मैं जिस खेत में अभी मैं आया हूँ, इस गाँव में, उस खेत में बेचारी वो काम कर रही वाली जो महिला है, उसको जब मैं पूछता हूँ तो ये शब्द उसको समझ में नहीं आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा करिकुलम बहुत ऊपर है और बच्चे, परिवार, फैमिलीज बहुत नीचे है। तो ये दूरी हमें पहले तो मुझे लगता है कि दूर करनी पड़नी चाहिए, और इसको लेके कई चीजें हम भी प्रयास कर रहे हैं। और प्रथम की ओर से जब निपुण की गाइडलाइंस लिखे जा रहे थे, उसमें भी हमने ये कंट्रीब्यूट किया है कि कैसे हम सोशल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें। कि स्कूल, मनीषा जी ने अभी जाते जाते एक बहुत अच्छी बात बोली कि स्कूल के भीतर ही शिक्षा नहीं होती है, आंगनबाड़ी के भीतर ही सिर्फ शिक्षा नहीं होती है, शिक्षा हर जगह होती है, घर में भी होती है। जब मैं माँ या पिताजी कोई घर में कुछ काम कर रहे होते हैं, रोटी बना रहे होते हैं अगर हम लोग, तो उस रोटी बनाते समय भी शिक्षा होती है। वो शिक्षा भी हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, और वो देने के लिए जो हमें प्रयास करने चाहिए, कम्युनिटी को एम्पावर करने की जरूरत है, उन्हें आइडियाज देने की जरूरत है। जो मैं खेत की माँ की बात कर रहा हूँ, जो त्रस्त है अपने जीवन को लेके, उससे हमें ये भी बताना है कि जब आप खेत में काम करते हैं तो आप बच्चों के साथ कैसे बात कर सकते हैं। घर में जब आप खाना पकाते हैं तो क्या रोटियां गिनने के लिए दे सकते हैं, वरना लोग हमेशा ये कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली मेरा अनुभव ये बताता है धनश्री जी कि
टाइम से ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। एंड प्रथम में हम लोगों ने लगभग 20,000 गाँव में हम काम कर रहे हैं। हमने जहां जहां पे आंगनवाड़ी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां पे हमने मोहल्लावार माताओं के छोटे छोटे ग्रुप बनाए और उन ग्रुप को बोला है कि ज्ञान ऊपर से नहीं आएगा, आपको आपस में एक दूसरे की मदद करनी होगी और धीरे धीरे एक दूसरे की मदद करो। अगर एक शब्द आप नहीं जानते, आप दूसरे की मदद ले लो और धीरे धीरे इन माताओं को अगर हम थोड़ी थोड़ी जानकारी, जो करिकुलम साल भर का है, उसको अगर हम छोटा छोटा आसान बना के अगर इन पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं, तो हमें यह नजर आया है कि लगभग 50,000 ग्रुप्स माताओं के पेरेंट्स के हमने इन 20,000 गाँव में बनाए हैं। वहाँ का अनुभव हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं श्रुति जी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो क्लिप है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप देखेंगे तो आपको जरा ज्यादा क्लियर होगा। सो आप देखिए कि हम इन ग्रुप्स को क्या कर रहे हैं। तो एक छोटा आइडिया वीडियो भेज रहे हैं कि आप आता सर्व माता एक एक वस्तूचे नाव घेऊन ती वस्तू टेबलाच्या वर की टेबलाच्या खाली ठेवली आहे ते पूर्ण वाक्यात सांगतील. आपण मोबाईलच्या मदतीने यूट्यूबवरून मुलांसाठी गाणी आणि गोष्टी कशा प्रकारे शोधू शकतो हे समजून घेऊ. इथे हा सर्चचा आयकॉन दिसत असेल तर इथे आपल्याला क्लिक करायचंय. बालगीत मराठी हे टाईप करायचंय. पण दुसऱ्या पद्धतीने सर्च करणार. हा इथे मायक्रोफोनचा आयकॉन दिसतोय तर याच्यावर क्लिक करून आपल्याला बोलायचंय टोपीवाल्याची गोष्ट. तर बघा गोष्टी मिळालेली आहेत. तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे आइडियाज भेज रहे हैं और ग्रुप में लोग माताएं ऐसे देखती खुर्चीच्या वरती पावडरचा डब्बा आहे. खुर्चीच्या वरती रिमोट ठेवले आहे. ही कैची टेबलवर आहे. रेखांना टेबलच्या खाली आहे. टेबल बॉल टेबलच्या खाली आहे. मोबाईल टेबलवर आहे. रुमाल टेबलवरती आहे. खाटेवर पुस्तके, नोट्स आहे. हे खाटेखाली आहे. बकेट खाटेखाली आहे. कंपास पण खाटेवरती आहे. पॅड पण खाटेवरती आहे. चष्मा पण खाटेवरती आहे. पहले वो खुद करती है करके देख घर जाके फिर बच्चों से अपने अन्य साथियों की मदद परिवार के लोग करवाती. Bowl is on the table. Pen is on the table. टेबल के ऊपर बुक है. टेबल के ऊपर टिफिन है. टेबल के ऊपर पेन है. टेबल के नीचे बोतल है. टेबल के नीचे बुक है. खाटावरती कंपास आहे. खाटावरती पॅड आहे. खाटावरती कंपास, चष्मा आहे. खाली आहे. खाटाखाली टॉप आहे. खाटाखाली बाटली. गुड. थैंक यू. आई थिंक ये इस वीडियो में जो मैं दिखाना चाह रहा था छोटे छोटे बिट्स में लोगों को छोटी छोटी आइडिया दे दो, उनको संगठित होने को बोलो, तो वो बाहर भी, मतलब टीचर का काम रिप्लेस नहीं हो सकता. टीचर को जो काम करना है वो टीचर ने स्कूल में करना जरूरी है. और हम सब हमेशा बोलते हैं कि इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड, एजुकेट अ चाइल्ड. तो उसका प्रैक्टिकल ये होगा कि जब हम पेरेंट्स को बताने लगेंगे कि आप इस तरह से अपने बच्चों के साथ काम कर सकते हैं और उनके कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए हमें उनको बताना होगा. शहरों की माताओं को कुछ और बताना होगा, ग्रामीण माताओं को कुछ और बताना होगा. ये समझ कर मुझे लगता है कि करने की जरूरत है. और यही चैलेंज मुझे धनश्री जी लगता है कि स्कूल करिकुलम का लेवल थोड़ा ऊपर है और जो बताने का स्तर है, एंड मुझे लगता है कि उसकी दूरी को मिटाने के लिए अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लोग हैं बहुत पढ़े लिखे. मैं लगभग 20,000 गाँव का एक आंकड़ा जरूर यहाँ बताना चाहूंगा.
माताएं जिनके बच्चे अब छोटे उम्र के हैं और जो आंगनवाड़ी में जाती है, उनकी उम्र, मैंने कुछ सर्वेक्षण के आंकड़े इकट्ठा किए हैं, वो लगभग 20 साल से 30 साल की उम्र की माताएं हैं और लगभग 80% माताएं कम से कम 5वीं पढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि स्कूल ने ये समझ लेना चाहिए कि हम अकेले नहीं, आंगनवाड़ी ने ये समझ लेना चाहिए कि हम अकेले नहीं है, और भी है लोग परिवार में, घरों में, मोहल्लों में, बड़े भाई बहन है, उनकी मदद कैसे ली जाए। आई थिंक उसके लिए हमें थोड़ा और ओपन होने की जरूरत है, स्कूलों को थोड़ा अपना दायरा खोलने की जरूरत है, ये मुझे लगता है। एंड ये नहीं होगा जब तक, तब तक हम निपुण नहीं हो पाएंगे, हमारे बच्चों की नींव पक्की नहीं हो पाएगी। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया स्मितिन जी, आपने बहुत अच्छे से बताया और आपका भी आपके वीडियो सच में बहुत कुछ कह गया, बिना कहे बहुत वीडियो देख के बहुत कुछ चीजें सीखने मिली और काफी सारे लोगों को जो है आइडियाज भी मिले होंगे यहाँ पर। जैसे आपने कहा 80% माताएं हैं जो बच्चों के ना उस एज ग्रुप में जो जिनके छोटे बच्चे हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेते हैं, तो उनको सक्षम करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस लाएंगे तो वो अपने आप ही बच्चों में जाएगा। और जैसे रिसर्च भी कहता है कि नो मैटर द फाइनेंशियल और बैकग्राउंड, उनका आयकर, कोई भी आयकर श्रेणी के हो, वो कैसा भी बैकग्राउंड हो, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स इन्वॉल्व है, शामिल होते हैं उनके साथ, वो बच्चे अक्सर देखा गया कि बहुत अच्छे स्टडीज में बहुत अच्छा करते हैं एंड दे आर मोर लाइकली टू अचीव हायर ग्रेड्स, हैव बेटर सोशल स्किल्स, शो इम्प्रूव्ड बिहेवियर एंड अडेप्ट टू स्कूल वेल। ये बहुत सारी चीजें उसमें देखा गया है। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, अभी हम जैसे डिस्कशन में करें तो हमें समझ में आता है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने से वो जो काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्कूल में, कि एब्सेंटिज्म है, बच्चा नहीं आता है या ड्रॉप आउट होता है, काफी सारी चीजों पर हम मात दे सकते हैं सारी चीजों को। तो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। हम अभी जैसे ये कहा कि ये इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को भी देना, साथ साथ हमारे स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। तो हमारे साथ बीएमसी के मिस एचएम हमारे सुनील भांगरे सर जी हैं, जो बहुत ही सक्रिय रूप से हमेशा ही एक्टिव रहते हैं स्कूल, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उनके बहुत खास है, तो काफी इंटीग्रल पार्ट रोल प्ले करते हैं वो इसके अंदर। सो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सर, जैसे कहा कि हाउ कैन वी नर्चर, हम किस तरह से पेरेंट्स का या फिर ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इस एसोसिएशन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं ताकि ये पूरे ओवरऑल स्कूल के एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करके पॉजिटिव एनवायरनमेंट लाए। तो सुनील सर जी, आप थोड़ी रोशनी डालेंगे इस पे? हाँ जी। कैसे है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स अपने स्कूल के साथ जुड़े रहे, तो इसी में एक हिस्सा है ये कि एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, ये शासन ने उनको अधिकार दिया हुआ है। ये शासन के तहत ये कमेटी तैयार होती है और इसमें 75% पेरेंट्स होते हैं, 25% और अन्य प्रतिनिधि होते हैं। इसमें हमारे काउंसलर हो सकते हैं, एजुकेशन एडुकेटर हो सकते हैं, एनजीओ सदस्य हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे 100% जो होते हैं, तो 75% पेरेंट्स में से, उन्हीं में से जो जिन बच्चों के माता पिता है वही वहां पर अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये सीधे सीधे हमारे जो पेरेंट्स है उनमें से चुनी गई कमेटी होती है। और ये कमेटी हमारे, अगर आपने जो बच्चों की संख्या बताई आज मुक्तांगन के साथ, कितने बच्चे जुड़े हैं, उनके पेरेंट जुड़े हैं, तो इन सारे सब पेरेंट्स को तो एक साथ हम अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन इनके जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि होते हैं, वही इस एसएमसी के जरिए हमारे स्कूल से, हमारे स्कूल जो प्रिंसिपल है उनके साथ में, टीचर के साथ में जुड़े रहते हैं और वो उन पेरेंट्स की तरफ से इस स्कूल पर ध्यान देने का काम करते हैं, या उसे नियंत्रण संनियंत्रण भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मेरी पीपीटी यहाँ पर अगर शेयर की जाए तो मैं आगे चल सकूं। प्लीज मैडम। हाँ जी। यहाँ पर ये स्कूल मैनेजमेंट का एसएमसी के ऊपर जो तैयार होता है, कभी सेमिनार होते हैं, तो उस पर ये थे, ये जो शाला व्यवस्थापन समिति एसएमसी है, उसमें जो हमारे पेरेंट्स चुने जाते हैं, उनके खासकर उन्हें उनके क्या कर्तव्य होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, इस पर हम फोकस कर सकते हैं। ये उनके उन्हें सीधे सीधे स्कूल पर संनियंत्रण करना है। मतलब एचएम हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, ये तो स्कूल का काम देख रहे हैं,
लेकिन इनके साथ में अगर ये कमिटी साथ में रह के अगर वो काम देखेंगे तो वो और बढ़िया हो सकता है। किस तरह की स्कूल में किस तरह की सुविधा है, किस तरह पढ़ाई हो रही है या पढ़ाई के बारे में जो भी कुछ बातें हैं, वो सारी बातों को लेकर ये कमिटी मेंबर है, ये ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पीएमसी स्कूलों में होता है या जिला परिषद स्कूलों में होता है या सभी स्कूलों में जो काम चल रहा है, उस पर ध्यान रखने के लिए ये कमिटी होती है। तो ध्यान रखना है मतलब जुड़कर वो मिलकर अच्छा काम होना चाहिए, ये काम करना है, इसकी ये ज़िम्मेदारी होती है। वैसे कई अपने गवर्नमेंट स्कूलों के लिए शासन से कुछ अनुदान मिलता है, उसे आर्थिक संनियंत्रण वो सेकंड पार्ट आता है जो कर्तव्य होता है कि जब पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो वो ठीक तरह से खर्चा हो रहा है या नहीं? और वो क्वालिटी बेस के लिए जो स्कूल के लिए नीड है, उसी के लिए खर्चा हो रहा है, वो सही में इस्तेमाल अच्छी तरह से हो रहा है। इस पर ध्यान देने का काम भी ये कमिटी करती है और इसके लिए ये सारे हमारे जो सदस्य हैं उस मीटिंग में हाजिर होंगे और वो पहले तय करेंगे कि अगर हमारे सेक्रेटरी जो होते हैं सचिव यानी एचएम जो होते हैं वो सबके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि हमें स्कूल के लिए ये चीजें खरीदनी है जो भी हो ब्लैक बोर्ड हो या कोई स्टेशनरी हो कोई भी कंप्यूटर हो तो उस कैसे अगर वो ज्यादा 5,000 से ज्यादा है तो फिर कोटेशन मंगाएँगे और वो कोटेशन में से सही कौन-सा है, किसी का कौन-सी चीज़ें खरीदनी है, ये हमारी कमिटी तय करती है। और उसे खरीदने के बाद अगर वो ठीक है क्या, बराबर है क्या, ये ध्यान देकर उसे फिर से इसको ठराव के माध्यम से उसको सम्मति दी जाती है। मतलब एक तरह से ये कमिटी पूरे बात स्कूल में जो भी कुछ बातें चल रही है, उस पर नियंत्रण रखने का काम कर रही है। उसी तरह अपने स्कूल का प्रचार और प्रसार बाहर यही पेरेंट्स करते हैं, यही कमिटी करती है। इसी कमिटी के ज़रिए बाहर प्रचार होता है। जैसे कि हमारे स्कूलों के बारे में हम तो बाहर जाते नहीं, लेकिन अपने सारे जो पेरेंट्स हैं, वही अपने स्कूल के बारे में बाहर प्रचार करते हैं कि मेरा स्कूल कैसा है। जैसे अभी मुक्तांगन संस्था है, इनके स्कूल चल रहे हैं, तो मुक्तांगन संस्था का स्कूल कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, हमारे स्कूलों में कौन-कौन सी बातें हैं, किस तरह की सुविधा है, ये सारी बातें बाहर बताने का काम और लोग बाहर जो बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित है, उन्हें स्कूल तक लाने का काम भी एसएमसी समिति करती है। इसी से हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ जो बढ़ती है स्कूल में, तो पेरेंट एसएमसी का उसमें भी हाथ होता है। इसी तरह क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, क्वालिटी के ऊपर जो काम होता है, तो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हो रहा है या नहीं? उसमें क्या कमी है? ये नहीं कि हमें कमियाँ ढूँढनी है, तो हमें सपोर्ट करना है, ये सपोर्ट सिस्टम का काम एसएमसी करती है। कोई अगर किसी काम जैसे कि ट्रेनिंग्स होते हैं या कई सारी बातें होती है कि जो टीचर्स को कहीं बाहर जाना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर ऐसे काम होते हैं, जनगणना का काम है, इलेक्शन का काम है या कई काम होते हैं। तो उस दौरान एसएमसी के सदस्य होते हैं, ये स्कूल में या क्लास में भी सीधा नियंत्रण के लिए अपना समय अगर दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं। या उन कामों पर नहीं जाना है, तो वे भी बता सकते हैं। इतने राइट्स होते हैं उन्हें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये एसएमसी को इतने राइट्स दिए होते हैं। तो इसी तरह आगे जितनी भी सारी है कि कई सारे निकष है अभी क्या कौन-कौन सी चीज़ें खरीदनी है ऐसे ये जैसे कहा तो स्टूडेंट के लिए कौन से स्टूडेंट के हित में कौन-कौन सी बातें होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने निकषाची अंमलबजावणी। तो इसमें वह क्लासेस जैसे कि यूडाइस फॉर्म होता है, यूडाइस फॉर्म में हमें क्लास के लिए वर्ग खोली जो होती है, क्लासरूम होता है, वो किस तरह का रूम होना चाहिए, उसमें कौन-सी सुविधाएँ होनी चाहिए, वो है या नहीं? वैसे बच्चों के टॉयलेट्स कैसे हैं या पानी पीने की सुविधा कौन-सी है, किस तरह है, वहाँ का प्रेयर हॉल होता है वो किस तरह होना चाहिए, ये सारी सुविधाएँ वो जो हमें जो आरटीए ने बताया है कि इस तरह से होना चाहिए, वो है या नहीं या किस तरह होना चाहिए? जैसे कि मिड डे मील भी होता है, तो मिड डे मील अच्छी तरह से बनाया जाता है कि नहीं, वो संस्था जो प्रोवाइड कर रही है, वो कहाँ बना रही है, तो उनके किचन को विज़िट करना है। ये सारी बातों का ध्यान अगर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में बुक्स कितने हैं, कौन से हैं, ऐसे ही सारे कई सारी बातें हैं उसमें। तो ये सारी बातों को ध्यान देना, उसके कुछ कमी है तो उसे पूरी करने के लिए सारी कमिटी टीम वर्क करके यहाँ पर काम करती है। जैसे अभी बालकों के हक है, जितने भी अभी कई सारी बातें बच्चों के बारे में सुनाई देती है, बाहर होती है, तो उसे नियंत्रण करने का काम भी हमारी एसएमसी करती है। स्कूल में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो या बच्चों के प्रति कोई गलत व्यवहार ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्कूल में जैसे कि सीसीटीवी कैमरे बिठाए या बच्चों के स्कूल छूटने का समय है या बाहर से आने वाले व्यक्ति, तो कई सारे स्कूलों में कई पेरेंट्स होते हैं, वो
कई दूसरे भी व्यक्ति वहां पर आ जाते हैं, या तो उन्हें कैसे रोका जाए, किस तरह रोका जाए, या किस तरह बच्चों के हक जो है, बच्चों के अधिकार है, उन्हें हमें अच्छी तरह से सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या उस तरह से काम हो रहा है या नहीं, ये काम देखने का काम भी एसएमसी करती है। तो एसएमसी के जो सदस्य होते हैं, उन्हें हम कभी भी स्कूल में जो ऑब्जर्वेशन के लिए वो कहीं भी आ सकते हैं, अच्छा काम चल रहा है, और वही पेरेंट जो एसएमसी के सदस्य है, वो हमारे दूसरे पेरेंट से उन्हें बता सकते हैं कि स्कूल में किस तरह से अच्छा काम हो रहा है, विद्यार्थियों का स्कूल प्रवेश होगा, ऐसी कई सारी बातें हैं। तो उसी तरह अब ये कई सारी सुविधाएं हैं, अगर ये सुविधाएं नहीं होगी, तो वो सीएसआर के माध्यम से, एनजीओ की मदद से वो सुविधाएं प्राप्त करने में स्कूल को मदद कर सकती है। तो यही नहीं होता, स्कूल के पास अगर फंड नहीं है, तो यहाँ हम आगे देख रहे हैं कि अभी हमारे जो स्कूल है, स्कूल में अगर कोई सुविधाएं नहीं है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कि अभी नेक्स्ट स्लाइड मैडम। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा स्कूल जो दिख रहा है, हमारा बीएमसी का स्कूल पेंटिंग किया हुआ है। तो हमारे पास डीमार्ट जो संस्था है, डीमार्ट सीएसआर, उन्होंने कोविड सिचुएशन में, मैं तो अभी यहाँ इस स्कूल में 2019 में आया हूँ अभी, तो कोविड सिचुएशन में उन्होंने एक अच्छा पेंटर देकर ये नीचे का पूरा हॉल उन्होंने अच्छी तरह से पेंटिंग करके दिया है, जिससे बच्चे और पेरेंट्स सभी को स्कूल में आने का मन होता है। तो ये सब कमिटी मेंबर की मदद से ही हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैडम। इसी तरह एसएमसी की हमारी सभाएं होती है, तो इसमें चर्चा होती है, सारे पेरेंट्स होते हैं, उनको उनकी तरफ से क्या आता है, हर जो हमने सब्जेक्ट रखे होते हैं उस पर चर्चा होती है, और हर सब्जेक्ट पर सारे पेरेंट्स उसमें हिस्सा लेते हैं, अपना मत रखते हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट भी है, एक बॉयज और एक गर्ल्स स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट होते हैं। वो स्टूडेंट की तरफ से उन्हें क्या लगता है, स्कूल में कौन सी कमी है, स्कूलों के बच्चों के लिए क्या कमी है, वो बता सकते हैं। तो ये राउंड में हम बैठकर सारे पेरेंट्स एक साथ चर्चा करते हैं। यह नहीं कि प्रिंसिपल बोलेंगे और बाकी के लोग सुनेंगे। तो यहाँ पर हमारी टीम वर्क होता है, सारी टीम ने ये काम करना है। जैसे कि एक एरिया का नगर सेवक अपने एरिया के लिए काम करता है, ऐसे ये सारे पेरेंट्स सदस्य अपने स्कूल के सारे पेरेंट्स की तरफ से यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे क्लासरूम है, तो यहाँ पर एनजीओ की तरफ से एक डिजिटल क्लासरूम बनाया गया हुआ है। अच्छी तरह से वहाँ पर बेंचेस प्रोवाइड किए, कारपेट प्रोवाइड किया हुआ है, प्रोजेक्टर है। तो ऐसे ये भी सारी बातें हमारे एसएमसी के सदस्य उनकी तरफ से उनका योगदान देकर, या ऐसे एनजीओ है तो उनकी तरफ से लेकर आते हैं, और स्कूल में वो सुविधाएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है। ये पेंटिंग अभी यहाँ पर पहले जो था, तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ सीधा पीछे की तरफ से हिस्सा था। तो ये एक अच्छी तरह से हम क्या होना है आगे भविष्य में, मेरे स्कूल में कौन सी सुविधा होनी है। तो अभी ये जो नाम दिख रहा है स्कूल का, ये हमारा यहाँ पे हम जिसे कहते हैं कि कोई भी आएगा, और हमारे स्कूल में मैं रहता हूँ, इस स्कूल में पढ़ा हूँ, तो सारे बच्चे या पेरेंट्स भी आकर यहाँ पर फोटो निकालते हैं। कोई प्रोग्राम होगा, तो प्रोग्राम के लिए पीछे बैकग्राउंड जो होता है, वो सेल्फी पॉइंट इसे हम कहते हैं। तो इस तरह से हमारी सुविधा, हम क्या चाहते हैं, वो सुविधा पेरेंट्स की मदद से हम यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमें स्वच्छ स्कूल का डीमार्ट की एक उन्होंने कंपटीशन रखी है। तो कई सारे स्कूलों में से हमारे स्कूल को 2019 में थर्ड प्राइज मिला, और मोबाइल साउंड सिस्टम वहां पर उन्होंने प्रेजेंट की थी। तो हम अच्छा काम करते हैं तो उसको प्राइज भी मिलते हैं। तो इसके लिए हमारे पेरेंट्स का भी सहयोग था, कि वो बार बार विजिट करते, ऑब्जर्वेशन करते कि साफ सफाई अगर है या नहीं, वो देखते। तो ये आपको एक पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, और उनकी मदद से ही हमें ये प्राइज मिला है। नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर कोविड सिचुएशन में जिन बच्चों को टैब नहीं थे, जिनके पास सादे मोबाइल थे, तो वहाँ पर कई एनजीओ के माध्यम से, हमारे अधिकारी वर्ग के माध्यम से, यहाँ पर हमारे सुप्रिटेंडेंट सर दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, कि उन्होंने या बच्चों को उनको उनके हाथ से टैब दिए गए। यहाँ पर हमारे टीचर है, तो ऐसे कई सारे बच्चे थे जिनको सादा मोबाइल था, उन्हें टैब भी दिए गए थे। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देख रहे हैं आपको कि लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी नई तैयार कर गया की है। यहाँ पे खाली ऐसा ही खाली जगह थी, वहां पर लाइब्रेरी तैयार किया। और ये सीसीटीवी कैमरे दिख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे हमारे जो कमिटी मेंबर है पद्माकर आचार्य साहब, उन्होंने खुद डोनेट किए हैं।
उन्होंने अपनी तरफ से, वो एक स्टूडेंट भी है इस स्कूल के, और सीसीटीवी कैमरे लगने की वजह से पेरेंट्स और बच्चों को सुरक्षितता महसूस होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे लाइब्रेरी दिख रही है, डी मार्ट ने लाइब्रेरी तैयार की है प्राउड। ये जो खाली जगह थी उसी में उन्होंने पार्टीशन लगा के हमने यहाँ पर लाइब्रेरी तैयार किया, अच्छा फर्नीचर तैयार किया, ताकि लाइब्रेरी के लिए अलग से क्लासरूम नहीं है, तो ये इस तरह का एक लाइब्रेरी का रूम बन गया। और ये बीएमसी के लिए, हमारे स्कूल के लिए एक गौरव की बात हुई, बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधा हुई। नेक्स्ट स्लाइड पर। ये कंप्यूटर रूम है, ये भी हमें डीमार्ट की तरफ से मिला है, लेकिन ये 20 कंप्यूटर है, यहाँ बच्चे खुद आकर पढ़ते हैं। तो ये सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधा मिल रही है, तो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यह एसएमसी, हर एसएमसी अपने स्कूल में ऐसी सुविधाएं हो, इसके लिए एक साथ मिलकर प्रयास कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सारी सुविधा है ये। नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर 26 जनवरी के दिन हमारी बच्ची को जो मेरा ड्राइंग कंपटीशन होती है उसमें प्राइज मिला था, तो नगर सेविका, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनके हाथों से ये होता है। तो इसी ऐसे प्रोग्राम में भी हमारे एसएमसी सदस्य साथ में होते, जिससे से ज्यादा पेरेंट्स या एरिया में प्रचार होता है कि हमारे बच्चे किस तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे ये जो है पियून और हमाल भाई है, इन्होंने भी स्कूल के लिए डोनेशन किया है। मतलब यहाँ तक ये बात होनी चाहिए कि ये स्कूल अगर मेरा है तो मेरी तरफ से मैं क्या कर सकूं। तो ये कई प्रोग्राम होते हैं, तो प्रोग्राम के लिए जो दिया जलाने के लिए समय होते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से दोनों ने दिए, पियून और हमाल। तो ये बात होनी चाहिए कि मेरा स्कूल है, हर पेरेंट्स, हर टीचर्स को लगना चाहिए कि ये मेरा स्कूल है, तो इसके लिए इनका एक फोटो दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू। तो ये इस तरह एसएमसी, एक उदाहरण के तौर पर हमने बताया कि कोई भी छोटा स्कूल हो, बड़ा स्कूल या कोई भी हो, लेकिन एसएमसी के सारे सदस्य अगर टीम वर्क करते हैं, अपने एचएम के साथ मिलकर काम करते हैं, अपने टीचर की बात रखते हैं, बच्चों से आप बात करते हैं, तो वो स्कूल आगे बढ़ता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सुनील सर जी, आपने जितना शेयर किया है, आपने आपके एसएमसी द्वारा जितना कुछ अचीव किया है, इट्स वेरी कमेंडेबल। तो हम ये Thank you, कहना thank you. चाहेंगे कि ऐसे लीडर्स हो और ऐसे एसएमसी को एनकरेज करें, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेटरी डिसीजंस के लिए अगर आप एनकरेज करते रहे, तो अपने आप ही वो है ना, वो मोटिवेशन उनमें रहेगा और वो एवरीडे कुछ ना कुछ नया करने की, हर बार कुछ ना कुछ अच्छा करने की, अपने बच्चों के लिए Yes, स्कूल ma'am. का सहयोग देंगे। तो आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है और बहुत कुछ आखिर में हाँ जी, इतना ही मैडम कि लास्ट ईयर, अभी जो ये 2022-23 में हमारे एजुकेशन ऑफिसर ने जून महीने में विजिट की थी, तब 218 हमारी स्ट्रेंथ थी। और उसके बाद पेरेंट्स सारे ने, सब ने प्रयास किया, तो हमारे सितंबर तक 285 तक बढ़ी, और बालवाड़ी का सेकंड क्लास भी चालू करना पड़ा। इतनी स्ट्रेंथ पर पेरेंट्स की वजह से बढ़ गई मैडम। थैंक यू वेरी कमेंडेबल सर जी, कमेंडेबल। और हम आशा करते हैं कि आपके एसएमसी के साथ और आपके साथ स्कूल ऐसे ही दिन ब दिन तरक्की करती रहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो अभी हमने स्कूल फैकल्टी की तरफ से उनका पर्सपेक्टिव सुना, हमारे प्री स्कूल के जो ईसी के स्मितिन सर जी, उनका पर्सपेक्टिव सुना, और हमारे बीएमसी के एचएम, उनके तरफ से एसएमसी का भी रोल क्या है, किस तरह से पेरेंटल एंगेजमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये सब देना। हमारे साथ हमारे बहुत ही अहम स्पीकर जो है आज, हमारे पेरेंट हैं, जिनके ऊपर ही पेरेंटल एंगेजमेंट जो थीम है उनके ऊपर है। तो उनसे पूछना चाहेंगे कि नरेंद्र जी, आप आपके एज अ पेरेंट, आप आपके अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि स्कूल ने आपको किस तरह से कैसे स्कूल एंगेज रखता है आपको, स्कूल रेगुलर डे पे या फिर कोविड के टाइम में भी आप शेयर कर सकते हैं, उस टाइम में किस तरह से आपके साथ आपको एंगेज रखा स्कूल ने अपने साथ। और किस तरह से आपको सपोर्ट किया कि बच्चों को स्कूल में, घर में सपोर्ट करे बच्चों के एजुकेशन में, ताकि वो पीछे नहीं छूटे। तो हम आपसे भी आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। ओवर टू नरेंद्र जी। थैंक यू मैडम। मेरा नाम नरेंद्र बोत्रे है और मैं लास्ट 8 ईयर से मुक्तांगन इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ। ये स्कूल चॉइस करने का मेरा एक अलग ही नजरिया था। मैंने जब मेरे बेटे को बहुत सारे स्कूल में दाखिला देने के लिए कोशिश की थी, मैं लास्ट 2-3 ईयर से मैं वो सोच रहा था। लेकिन जब
वही सब चीजें जो इंटरनेशनल स्कूल में होती है, वही सेम चीज मैंने मुक्तांगन स्कूल में पाई। इसलिए मैंने वो आईबी और इंटरनेशनल स्कूल का एडमिशन लेना छोड़ दिया और मैंने डायरेक्टली मुक्तांगन को ही चूज किया। और लकीली मुझे जो फॉर्म मैंने फिलअप किया तो मेरा दाखिला हो गया। यहाँ पे कितनी सारे पॉइंट्स है, तो अभी हमारे पास बहुत कम है, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जब बच्चा एंटर होता है स्कूल में तो उसका वेलकम होता है, वार्म वेलकम होता है। और वो खाली वर्ड से नहीं होता, वो एक्टिविटी के साथ होता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी मैंने ढूंढा, मेरे हिसाब से ढूंढा है, कि जब बच्चा घर से आता है या ट्रेन में सफर होके आता है, बस में सफर होके आता है, तो वो जब एंटर करता है तो वहां पे एक बैरिकेड होना चाहिए कि बाहर का जो एटमोसफेयर है वो आप बाहर ही रखा छोड़ के आओ। अंदर आने के बाद आप मेंटली फिजिकली आप स्कूल के ही हो जाओ। सेकेंड चीज, जब हम कोई भी स्कूल अगर देखने जाए, कोई भी स्कूल में, किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, तो वहां से जनरली एबीसीडी करके स्टार्ट होता है। लेकिन हमारे स्कूल में एबीसीडी नहीं होता, जो सिंगल साउंड होता है, लाइक बी का ब। तो इतनी सिंपल तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे स्कूल में, मुक्तांगन स्कूल में, टोटली ईयर में 4 पीटीएम मीटिंग्स होती है। फर्स्ट सेमेस्टर के पहले 2, उसके बाद 2। लेकिन हम तो नहीं जाते स्कूल में, तो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, हर एक पेरेंट पीटीए मीटिंग में हर एक सब्जेक्ट को लेके हमको पढ़ाते हैं टीचर, कि हम कैसे आपके बच्चों से सिखाते हैं वो सब्जेक्ट। और वो सारा एक्टिविटी थ्रू होता है। जब हम खुद एक्टिविटी करते हो तो वो चीज दिमाग में परफेक्ट फिट हो जाती है। और सब्जेक्ट कोई ऐसे ऐसे होते हैं कि जिस, अगर आप साइंस ले लो या मैथ्स ले लो, टर्म या कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक शब्द की खासियत ही होती है कि आपको अगर मैथ्स लेना है तो मैथ्स के टर्म आने चाहिए, साइंस में लेना है तो साइंस के टर्म आने चाहिए। बाकी सारे स्कूलों में प्रोजेक्ट तो वो बस बोलने की बात होती है। प्रोजेक्ट का जो शासन ने कुछ अलग नजरिया सेटअप किया हुआ है। लेकिन प्रोजेक्ट मतलब क्या, कि ये पैसे दे दो और बाजार में से खरीद के लाओ, ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अगर बच्चों को हम पूछे कि ये प्रोजेक्ट में क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट किस पे बेस है, और हम रेगुलर लाइफ में इसका क्या यूज होने वाला है, उनका कुछ पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती है, वो रेडीमेड लाया हुआ होता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रोजेक्ट वो कब बनता है, क्या करते हैं, वो टीचर्स और स्टूडेंट ही देखते हैं। हमें यहाँ कुछ भी पता नहीं होता। मतलब वो सारी चीजें घर पे नहीं लाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है तो हमें पैसे दे दो या कोई बाहर से खरीद के लाना है, ये सब चीजें हमारे यहाँ होती नहीं है। तो इसकी इसके पॉइंट क्या होते हैं कि बच्चा इन्वॉल्व होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। प्रोजेक्ट का मतलब ही होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में बच्चा अगर इन्वॉल्व होता है तो वो ज्यादा सीखता है, क्योंकि एक्टिविटी होती है। और जब प्रोजेक्ट दिन के बाद हम जाते हैं तो ऐसे ही हम जब पूछते हैं कि हमें चेक करना होता है कि बच्चों को कितना आता है, कितना किया है, कितना समझा है, तो बच्चा आंसर देते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि बच्चों ने वो सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और उनके बारे में उनको पता होता है। जब रिजल्ट का दिन आता है तो सबके बीपीज हाई होते हैं। रिजल्ट, आम स्कूलों में रिजल्ट मतलब कोई कोई पेरेंट जाते ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ वो बात ही कोई अलग है। पहली चीज कि रिजल्ट सबके सामने शेयर नहीं किया जाता, एक फर्स्ट बात। मतलब ऐसा पूरा क्लास क्लास को एक साथ बुलाया गया है और रिजल्ट शो कर रहे, ऐसी बात नहीं होती। 1 टीचर 1 पेरेंट, एक पेरेंट्स के लिए 20-25 मिनट रिजर्व करते टीचर खुद। और यहाँ पे मार्क्स या ग्रेड्स की बात तो होती नहीं है। आप आपका बच्चा मतलब एक सब्जेक्ट में कितने तक वो गया है और उसमें क्या खामी है, वो 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। तो क्या होता है कि अगर बच्चा किसमें अगर वीक है या उसमें किसमें दिक्कत है, तो 1-to-1 कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। हम सीधे से बात कर सकते टीचर से और उनकी राय जानकर हम कुछ पर्सनली
कुछ अटेंशन दे सकते हैं कि अगर बच्चा मेरा इतना देखा है तो और आगे जाके मुझे क्या करना है, मैं क्या एफर्ट्स ले लूं, ये होता है। और बाकी सब जो सब्जेक्ट रहते हैं उनकी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऐसे नहीं कि आपको रिजल्ट है ले लो और जाओ। और खामियां नहीं, जो पॉजिटिव थिंग्स है वो भी बताई जाती है। और एक चीज मुझे अच्छी लगती है रिजल्ट के दिन में कि ये एजुकेशन के डिपार्टमेंट में नहीं डिस्क्रिप्शन होता, डिस्कशन जो बाकी भी सब्जेक्ट है उसका बिहेवियर कैसा है, वो बाकी बच्चों के साथ कैसे रिलेट करता है, उसको वो हेल्पफुल है क्या, इसकी भी बातें होती है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कूल मतलब खाली शिक्षा लेना ऐसा नहीं होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक मुझे प्लस पॉइंट लगता है। कोविड के सेक्शन में हमारे सगे वाले भी फोन करना दूर की बात थी, क्योंकि अगर सामने से फोन आया तो हम फोन उठाने में झिझकाते थे, वो क्या बोलेंगे क्या पूछेंगे। लेकिन मुक्तांगन ने उस कठिन परिस्थिति में भी, क्योंकि ये भूतो न भविष्य की ऐसी सिचुएशन थी, किसी ने सोची भी नहीं थी और ये ऐसा हो गया, सडनली हो गया। फिर भी मुक्तांगन ने सामने से सबको फोन किए, आप कैसे हो, क्या करते हो। उसके बाद उन्होंने जो इसका जो स्पैन था वो बहुत बड़ा हो गया था, 1.5 साल 2 साल तक ये चला कोविड का सेशन। तो फिर उन्होंने हमें कांटेक्ट करके हमको विश्वास दिलाया कि अभी इसका कोई एंड नहीं है, और हम जान नहीं सकते कि ये कितने तक और दूर जाएगा, तो हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो हम ऑनलाइन सेशन ले लेंगे। तो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और एक नई स्टेप उन्होंने हमको सिखा दी कि ऑनलाइन, हम तो गुरुकुल में पढ़े हैं, लेकिन ये ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है उसके बारे में हमको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। शुरू शुरू में बहुत टफ गया क्योंकि नेटवर्क इशू था, टैब नहीं थे, फोन नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो सब एडजस्ट हो गया। उस दौरान हमने खुद देखा कि टीचर कैसे पढ़ाती है। मैं भी एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ, तो हर एक सब्जेक्ट जो हम सिखाते हैं ना, तो उनका एक जॉनर अलग है। अगर मराठी सिखा रहे हो तो उसका जॉनर अलग है, मैथ सिखा रहे हो तो उसका जॉनर अलग है। तो आपको उस जॉनर के साथ ही जाना चाहिए, तभी आप बच्चों को या सामने वाले विद्यार्थी को सिखा पाएंगे। तो उस दौरान हमको भी शिक्षा मिली कि अगर हम बच्चों को लेके बैठते हैं तो कैसे सिखाना चाहिए, क्या डिलीवर करने का क्या वे होना चाहिए। जब अपने टाइम टेबल सेट किया तो भी वो अच्छी बात थी कि टाइम टेबल ऐसा सेट किया कि बच्चा कौन सी कक्षा में है और उसका एज क्या है, वो सुबह कितने बजे उठ सकता है और प्रॉपर बैठ सकता है क्या, वो भी हमने देखा, वो भी अच्छी बात थी। अपने बच्चा अटेंड करता है लेकिन वो प्रेजेंट रहता है क्या स्क्रीन के सामने या नहीं करता, तो आपने सरप्राइजिंग फोन भी किए पेरेंट्स को। ये कौन करता है? एक जो वेल एजुकेटेड और डिवोटेड टीचर ही कर पाता है। आपने जब सोशल में जब ऑनलाइन सेशन चल रहे थे हमारे, तभी आपने थोड़ा बहुत होमवर्क भी किया था ताकि बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस हो सके, पढ़ने की प्रैक्टिस हो सके, बच्चे मेंटली उसमें रह सके। तो आपने होमवर्क भी दिया था, वो होमवर्क भी आप चेक करके देते थे। उसके बाद अपने ग्राफ ग्राफ की एक कंसेप्ट निकाली, वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि बच्चे तो होमवर्क भेज रहे हैं लेकिन हम इतना भी नहीं देख पा रहे थे कि हर एक सब्जेक्ट में बच्चा होमवर्क भेज रहा है या नहीं। जब अपने ग्राफ का जो कंसेप्ट निकाला तभी हमको पता चला, मतलब पेरेंट्स को पता चला कि हाँ, सब्जेक्ट का तो बच्चा स्टडी कर रहा है लेकिन म्यूजिक का नहीं कर रहा है, क्राफ्ट का नहीं कर रहा है, ड्राइंग का नहीं कर रहा है। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से सेशंस आपने कंडक्ट किया। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलआरजी। जो एलआरजी यानी स्पेशल चाइल्ड जो डिसेबल होते हैं शिक्षा में, उसके लिए आपने अलग से ग्रुप बनाए और उसके लिए आप विदाउट फीस आप इतना डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है।
हम अगर हमारे घर में भी ऐसा कोई बच्चा है तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि आपकी लायकी नहीं है, आप पढ़ो ही मत, आप यही करो वो ही करो, मतलब उसको मोरटाइज करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, उसके लिए आप अलग एफर्ट्स लेते हैं, ये प्लस पॉइंट है। थैंक यू मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू नरेंद्र जी, आपने हमें कोविड वगैरह सब वो चीजें बताते हुए हमें फिर से उस दौर पे लेकर गए थे जो फॉर्चुनेटली हम पीछे छोड़ के आए। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपने इतना नजदीकी से इतना अच्छे से ऑब्जर्व किया और एक एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सो अभी जैसे हमने कहा कि पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव भी मिल गया है, सो अभी हम और टुवर्ड्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। सो हम आप सब सारे स्पीकर से वी वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चंस कि हाउ कैन टीचर एजुकेटर्स communicate effectively with parents, and like just now Narendra ji mentioned कि LRG या children with special needs, so especially with parents of children with special needs, and it is a question, common question for all speakers. So एज अ टीचर एजुकेटर हम किस तरह से इन पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं या इनके से कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि वो बच्चों को जिनको स्पेशल नीड्स है उनको सपोर्ट कर सके। तो हाँ जी, आई कैन सी स्मितिन जी अनम्यूटिंग हिमसेल्फ, सो ओवर टू स्मितिन। मैं लगभग नरेंद्र जी की बात, मनीषा की बात एंड देन बांग्रे सर की बात सुनने के बाद मेरे मन में बहुत इधर उछल पुथल हो रही है, बहुत सारे ख्याल मन में आ रहे हैं। पहला बात, मैं आपके सवाल को मैं दो हिस्से में बांट के जवाब देना चाहूंगा धनश्री जी। पहला हिस्सा है कि अभी भी हम उस पूरे शिक्षा को ना स्कूल के एकदम स्कूल में बांध के रख रहे हैं। आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड एंड मतलब सिर्फ टीचर अकेला है, स्कूल अकेला है बच्चों की परवरिश और शिक्षा के लिए, ये मानना पहले हमें रोकना पड़ेगा। एंड थोड़ा और बड़ा मन बड़ा करना पड़ेगा कि बहुत सारे और लोग हैं, बहुत सारे और भी स्टेक होल्डर्स हैं जो बच्चों की शिक्षा में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या घर की दादी नानी बच्चों को भाषा नहीं सिखाती है? क्या घर के पेरेंट्स बहुत सारा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उसको हम महत्व नहीं देते, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी स्कूल में होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये भावना यहाँ पे हमें पहले बदलनी पड़ेगी। देन हम जो सोचेंगे, मुझे लगता है बहुत सारे और ऐसी बातें निकल के हमारे मन में आएगी कि क्या हम लाइक आपने कहा कि स्पेशल नीड्स, मुझे तो लगता है एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, तो हर एक के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो वो स्पेशल क्या हो ये बताने का मुझे लगता है कि सोर्स आज के तारीख में स्कूल है। स्कूल ने जरूर अपनी भूमिका को थोड़ा और, लर्निंग आउट ऑफ स्कूल भी क्या है, लर्निंग इन स्कूल तो हम बहुत कुछ बात करते हैं, बहुत सारा करिकुलम है, टीचर एम्पावरमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। बट बाहर की दुनिया को स्कूल के साथ जोड़ना, खासकर पेरेंट्स को स्कूल के साथ जोड़ना, उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। मुझे बहुत अनफॉर्चुनेटली ये बताने में दुख होता है कि बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में सोचते हैं। कोरोना को थैंक यू तो नहीं बोलूंगा बिकॉज बहुत नुकसान किया है, लेकिन कोरोना ने हमें 2 साल ये जताया कि अगर स्कूल बंद भी रहा तो शिक्षा बंद नहीं रहेगी। और हमारे टीचर मोहल्लों में गए, गाँव में गए, टेक्नोलॉजी की जहाँ पॉसिबल है वहां पे मदद ली। तो मुझे लगता है कोरोना ने मुझे जो सिखाया है वो ये है कि बाहर भी शिक्षा है और उस शिक्षा को जागरूक करने के लिए अब बहुत कुछ किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही लॉकडाउन उठ गया, नॉर्मल सी आ गई, हम बैक टू पैवेलियन हो गए और हमें वही चाहिए जो सदियों से चल रहा है, हम बदलना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि स्कूल के अंदर हमने सदियों से इन्वेस्टमेंट की है, वो जरूरी है। एसएमसी ने जो बांग्रे सर ने बताया, एसएमसी इस तरह से अगर एम्पावर्ड है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतने गाँव में घूमता हूँ, बहुत सारे एसएमसी सदस्यों को तो पता भी नहीं होता है कि हम सदस्य हैं। तो बांग्रे सर जैसे लीडरशिप की जरूरत है जो एसएमसी को लेकर आए, जो गांव के लोगों को खींच के लेके आए और बताए कि उनकी भूमिका क्या है। तो मुझे थोड़ा लगता है कि स्कूल के अंदर बहुत काम हुआ है बट स्कूल के बाहर कनेक्शन जोड़ने के लिए काम कम हुआ है, और उसको कई चीजें की जा सकती है। हमारा देश बहुत सारे फेस्टिवल मनाता है, तो मुझे लगता है कि छोटे छोटी चीजों का फेस्टिवल हो सकता है। क्या पहली में पहला कदम रखना, ये एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। आंगनवाड़ी से बालवाड़ी से पहली में अगर हम जा रहे हैं तो क्या उसका सेलिब्रेशन हो सकता है, जरूर होना चाहिए। जब बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है
नामकरण का विधि होता है तो पहली में पहला कदम रखने का सेलिब्रेशन क्यों नहीं होता? ऐसे कई चीजें हैं जो मुझे लगता है एज कम्युनिटी हमें करनी चाहिए। और अंत में मैं ये कहूंगा कि मेरा विश्वास हो गया है 20 साल 25 साल काम करने के बाद कि क्रांति जो है, बदलाव जो है सरकार के आदेश से नहीं निकले, वो हमें निकालना पड़ेगा, कम्युनिटी को निकालना पड़ेगा और पेरेंट्स को इकट्ठा होना पड़ेगा, उन्हें एम्पावर्ड होना पड़ेगा, तब जाके होगा, तब जाके मुझे लगता है बहुत कुछ होगा। सो चार दीवारी के अंदर हम बहुत अच्छा काम करेंगे, बट वो इनसफिशियंट होगा जब तक हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार नहीं करेंगे। सो मैं इतना ही कहूंगा। और जो आपने लास्ट में पूछा था, छोटा हल्के में जवाब दूंगा कि मैं एक दिल्ली के एक स्कूल में गया था, जो इंक्लूसिव स्कूल था, और उसको समझने के लिए मैं गया था। तो स्कूल में एक बकरी थी, उसकी आंख में प्रॉब्लम था, मुर्गी थी, उस मुर्गी के भी पैर में प्रॉब्लम था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उसमें कुछ बच्चे थोड़े से विकलांग नजर आए, लेकिन मुझे पहली नजर में वो दिखा नहीं, इतना एनवायरनमेंट उस स्कूल में इंक्लूसिव बनाया गया था। जब मैं एक कमरे में गया, क्लास में गया, तो मैंने एक बच्चे को देखा। वो बच्चा, उसके पैर को पोलियो की वजह से प्रॉब्लम था। तो ऑब्वियसली मैं एक आम आदमी हूँ, आम भावनाओं वाला आदमी हूँ, तो मुझे बहुत इमोशनली बहुत बुरा लगा, और मैं सद्भावना के साथ उस बच्चे के बारे में, मेरे मन में वो भाव आया, अरे रे ये बच्चा बेचारा। तो मैंने ऑब्वियसली एक सवाल वहां क्लास में पूछा कि क्या इस बच्चे को बाकी के बच्चे मदद करते हैं? तो सब बच्चों ने बड़े नॉर्मल में जवाब दिया कि हाँ हाँ सब बच्चे मदद करते हैं। बट टीचर की मैं दाद देना चाहूंगा, ये जैसे ही मेरा सवाल खत्म हो गया, जवाब खत्म हो गया, टीचर ने बाकी बच्चों को सवाल पूछा कि ये किस किस को मदद करता है, वो भी तो बताओ सब लोग। तो सब बच्चों ने कहा कि हाँ हाँ हमें ये मदद करता है। तो बताने वाली बात ये है कि हमें थोड़ा सा अपने मन को और बोलने की जरूरत है, थोड़ा अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। जब मैंने उस स्कूल के टीचर से बात करी कि आप ये कैसे करते हो कि सब लोग एक दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के एक साथ आए हुए हैं, कोई किसी को आपके यहाँ कमजोर नहीं मान रहा है। मेरे मन में तो आ गया कि ये बच्चा कमजोर है, इसको और अधिक मदद की जरूरत है। तो जब वो टीचर ने मुझे एक बात कही जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब मेरे मन में ये था कि ऐसे विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूल होनी चाहिए, वो हमारी नॉर्मल टीचर की काम नहीं है। जब उन्होंने मुझे कहा टीचर ने कि मान लो खुदा न खास्ता ऐसे बच्चा आपके घर में अगर पैदा हुआ, तो क्या आप ये कहोगे कि ये मेरा घर उसके लिए रेडी नहीं है? आप तैयार होना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा, और उसी तरीके से सर्वसमावेशक बनने के लिए समाज को तैयार होना पड़ेगा, हमारी अपनी नजर को बदलने की जरूरत होगी। एंड ये मुझे लगता है कि स्पेशल नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मिसिंग लगता है। पेरेंट ये मानते नहीं है कि मेरे बच्चे को कुछ मदद की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन से लेके बहुत सारी और चीजें सोचने वाली जरूरत है। बट स्कूल अकेला नहीं है, नहीं होना चाहिए। आसपास का वातावरण बदलने की बहुत जरूरत है, और उसके लिए मुझे लगता है स्कूल से ही प्रयास शुरुआत होंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया स्मितिन जी। और वो जो टीचर है, उनकी जो बात है सराहनीय है कि जैसे घर को हम बच्चों के लायक बनाते हैं अपने खुद के, उसी तरह स्कूल को भी इन बच्चों के लायक बनाना चाहिए, ना कि वो बच्चे स्कूल के लायक बने, वो कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अभी इसी प्रश्न पे हम एक और राय लेना चाहेंगे सुनील भांगरे सर जी से, और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे टाइम की पाबंदी को नजर में रखते हुए। ठीक है हाँ मैडम। सुनील सर जी, हाँ आप दें। हाँ हाँ मैडम, कैसे है कि ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें सर जरूरत होती है। आपका हाँ वीडियो अगर आप ऑन रखें तो। हाँ हाँ। जो सारे स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, तो उनके उनकी जो पेरेंट्स होते हैं, तो पहले कई सारे उनके मन में सवाल होते हैं अपने बच्चे को लेकर। लेकिन हमारी जो टीचर या स्कूल की जो बात होती है, तो उस बच्चे में कई सारी खासियत होती है, कई सारी खास बातें होती है। उसको अगर हम प्रेजेंट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं,
और उस बच्चे में वो बच्चा क्या कर सकता है, स्कूल में क्या कर सकता है और घर में क्या कर सकता है। ये अगर शेयरिंग पेरेंट के साथ होता है तो पेरेंट्स का एक विश्वास बढ़ता है कि मेरा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। और स्कूल में ऐसे कई सारे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं या कुछ खास करते हैं तो सारे बच्चों के सामने वो मिसाल होती है कि एक अभिनंदन देखो क्या किया है इस बच्चे ने। तो ये सारे बच्चे उसकी तरफ देखने का नजरिया भी बदलता है। कई सारे बच्चे तो ये पहले तो पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते। और जिन बच्चों के पेरेंट्स जो पेरेंट्स ऐसे बच्चे होते, दिव्यांग बच्चे होते, तो उनको तो ऐसे मन में कई सारी बातें होती है या वो पीछे रहना चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा अलग है, मेरा बच्चा अलग है। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे अलग होते हुए भी अलग से काम कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स को विश्वास देना, भरोसा देना या उसके लिए उनके घर तक जुड़े रहना। जैसे कि हमने एसएमसी की बात करते हैं, तो एसएमसी के साथ उस एरिया में अगर हम सदा हमेशा संपर्क बना के रखेंगे तो उस पेरेंट्स का भी मनोबल बढ़ता है और वो स्कूल से जुड़ा रहता है। उसी के साथ वो टीचर हमेशा वो संपर्क पे रहती है। तो कई सारी बातें हैं कि हम जितनी बातों से या उनसे संपर्क बनाएंगे, वन टू वन बात करेंगे और उस बच्चे को कई सारे उसके लिए मौका देने के लिए हम कई सारे ऐसे प्रोग्राम जो स्कूल में उनका आयोजन करेंगे तो कई सारे बच्चे जो है ये आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस बच्चे को अगर मौका नहीं मिलेगा, उसके लिए मौका तैयार नहीं किया जाएगा, तो वो बच्चा आगे जाने के लिए ज़्यादा उसके तो तकलीफ हो सकती है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। हम पर डिपेंड है कि स्कूल क्या आयोजन करता है, किस तरह के उपक्रम आयोजित करता है और उस पेरेंट को उसमें कैसे शामिल करता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू भांगरी सर जी। आपने बहुत ही पते की बात कही कि पहले स्कूल ने भी अपनी तरफ से पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए, पूरे खुद को स्कूल को भी एजुकेटेड होना चाहिए कि इस संदर्भ में जाने के लिए हमें कितना सक्षम होना चाहिए और किस तरह से पेरेंट्स को हमें शामिल करना चाहिए या कम्युनिकेट किस तरह से करना चाहिए। सो अब हम अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो है आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी भावनाएं व्यक्त की, काफी कुछ नॉलेज दिया है आज के सेशन में, वेबिनार में। सो एक आखिरी सवाल जाते जाते आप सबसे पूछना चाहेंगे, एक रिकमेंडेशन या बेस्ट प्रैक्टिस जो आप देना चाहते हैं टू एंश्योर कि जो स्कूल का जो फोकस है पेरेंट इन्वॉल्वमेंट के तरफ और अच्छे से बढ़े और पेरेंट इन्वॉल्वमेंट को एक मीनिंगफुल और एक्टिव एंगेजमेंट के तौर में बनाया जाए सारे स्कूल्स में। तो आप में से एक एक रिकमेंडेशन देंगे और उसके बाद हम पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास से कोई रिकमेंडेशन आता है कि कौन सा ऐसे चीजें करनी चाहिए जिससे पेरेंटल एंगेजमेंट पे अपना फोकस बहुत ही मीनिंगफुल पेरेंट एंगेजमेंट बनाने की तरफ बढ़े। थैंक यू मैडम। मुझे ऐसा लगता है जब हमारा एजुकेशन ईयर स्टार्ट होता है तो हमारी पहले जो पीटीएम मीटिंग होती है, वो पीटीएम मेंबर न होने से न होके अगर किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को हम बुला पाए तो उम्र के हिसाब से उस शिशु में क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसका उसके शिक्षा के साथ क्या कनेक्शन है, अगर ये कनेक्शन हम पेरेंट्स को बता देंगे तो वो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि क्या होगा कि पेरेंट कुछ हद तक अपने बच्चों को पढ़ पाएंगे। क्योंकि आजकल क्या होता है कि रैट रेस लगी होती है, अगर नेबरिंग का बच्चा अगर क्रिकेट में जा रहा है तो मेरा भी क्रिकेट में जाना चाहिए। हर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर हर एक पेरेंट को अपना बच्चा क्या है और वो क्या करना चाहता है, ये अगर पढ़ कुछ हद तक, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो 100% उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी राय क्या है, उसकी उसका लगाव किस तरफ है, तो वो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर सही वक्त पर सही चीजें अगर पता चलती है तो उसका डेवलपमेंट के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है। थैंक यू सो मच। सो अगर आपकी बात को मैं सम अप करना चाहूँ तो ऐसा होगा कि एक सोशल इमोशनल डिपार्टमेंट हर स्कूल में हो जो बच्चों के पता है काउंसलिंग करे या बच्चों की क्षमता क्या है ये पेरेंट्स के साथ इंटरैक्टिव होके उनको। यस, तो थैंक यू फॉर योर रिकमेंडेशन, थैंक यू जी। या आगे सुनील सर जी। मैडम मुझे तो ऐसे लगता है कि हर पेरेंट्स में कोई ना कोई तो विशेष बात होती है या उनका विशेष काम होता है। ऐसे जो पेरेंट्स है उनको अगर हम स्कूल में बुलाए, हमारी जो असेंबली होती है उस असेंबली में उन पेरेंट्स को मौका दे कि वो किस तरह से उनके काम तक पहुंचे, उन्होंने अच्छा स्किल ये किया है। तो ऐसे हर पेरेंट्स का जो हमने चुने हैं हमारे पेरेंट्स,
या जो अभी जैसे कि हम बताना चाहेंगे, हमारे जो आचार्य साहब है, जो अभी उपाध्यक्ष कमेटी के एक्स स्टूडेंट है, तो एक बात पहले ऐसे कि उन्हें खाना घर में खाना खाने के लिए भी नहीं मिलता था मैडम। तो वो खुद बताते हैं कि स्कूल में खिचड़ी खाकर वो बड़े हुए, लेकिन आज उन्हीं के जो लड़के हैं वो इंग्लैंड और दुबई में काम कर रहे हैं, और एक वो अच्छे डेकोरेटर्स है। तो ये कई सारी ऐसी बातें जो छोटी छोटी उनके बीच में रहने वाले जो पेरेंट्स है, वो आज कौन सी बड़ी पोस्ट पर है, उन्होंने वो बड़प्पन कैसे हासिल किया और कैसे कर सकते, छोटी छोटी बातें। और कई सारे हम बोलता कहते हैं बच्चों को कि कई सारे ऐसे करियर ऑप्शन है, लेकिन अपने नजदीक में जैसे कि आज धारावी जैसा एरिया है, इस एरिया में कई इतने सारे बिजनेस चलते हैं छोटे छोटे, कि उसे देखने के लिए फॉरेनर्स आते हैं, और उनकी कीमत भी बहुत कुछ होती है। उनके पास में ही है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, वो दूसरे जगह की बात करते हैं, वहां पहुंचना, ये करना है। तो इन पेरेंट्स को हम आगे लाएंगे कि छोटा सा स्किल है, बैग बनाने वाले, कुछ भी बनाने वाले, तो इनको हम सामने पेश करते, तो पेरेंट्स को भी ये मौका मिलता है कि अरे भाई मुझे मौका दिया है स्कूल ने, मैं कुछ कर सकता हूँ, और वो अपने बच्चों के लिए वो मिसाल रखते हैं कि हम छोटे से छोटे बात पर भी हम बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसे एंगेजमेंट तो बढ़ा सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। सुनील सर जी, बहुत पते की बात कही है आपने कि हमें स्कूल्स को एक्टिवली अपने पेरेंट्स के अंदर कौन सा हिडन टैलेंट है, उनका पोटेंशियल क्या है। हम एक्सपर्ट स्पीकर्स के लिए बाहर जाते हैं तो हमें अपने अंदर की तरफ भी देखना चाहिए, उनका जो है मैं व्यक्ति विशेष महत्व जो है, उनको पर्सनालिटी जो है वो बाहर लाके शेयर करेंगे, तो वो जो एक पेरेंट्स कम्युनिटी के जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, और बच्चे भी अपने कम्युनिटी को पॉजिटिव लाइट में देखेंगे। यस थैंक यू मैडम, सो और मच जी। और उसी एरिया के है ना पेरेंट्स, तो बच्चे तुरंत विश्वास रखते हैं। थैंक यू मैम। ये मेरा टेक अवे होगा। थैंक यू सो मच जी। हाँ, आ, मैं बोलना चाहूंगी हाँ धनेश जी। मैडम। जैसे पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है बच्चे के लर्निंग में, स्कूल प्रोसेस में, तो वी नीड टू बिल्ड अपॉर्चुनिटीज इन द स्कूल वेयर वो खुद इन्वॉल्व हो और बच्चे के लर्निंग में, लर्निंग प्रोसेस में उनके साथ आगे बढ़े। जैसे कि मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, जैसे कि भांगरे सर ने बताया, पर ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जिसमें हम उनके पास जो स्किल है वो उनकी स्किल इनहैंस करने के लिए हम पेरेंटिंग वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो उनको कभी करने के लिए भी ना मिला, नहीं तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट एज प्रोसेस एंड एज अ पार्ट ऑफ अ स्कूल वी कैन गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी कैन ब्रिंग देम इन द स्कूल प्रोसेस। सो मुझे लगता है कि ये पेरेंट एंगेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। होपफुली एज अ स्कूल फैकल्टी मनीषा जी, जो आपने यहाँ पे सिखाए या जो भी आपके दिमाग मन में विचार आए हैं वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, यही उम्मीद के साथ हम स्मितिन जी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी जी, मैं आई थिंक नरेंद्र जी, मांगरे जी और मनीषा जी के बात को बिल्ड करके आगे थोड़ा और कॉन्क्रीट स्टेप्स की तरफ जाना चाहूंगा कि ये जो पेरेंट्स वर्कशॉप की बात आपने मनीषा कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं जो जहां से मैंने शुरू किया था मैं उसको फिर से जोड़ना चाहूंगा कि हर पेरेंट अपने बच्चे की शिक्षा में मदद कर सकता है। उसे विश्वास दिलाने की जरूरत है, उसे आइडियाज की जरूरत है कि वो रोटी बेलते बेलते क्या कर सकता है जिससे बच्चे को गिनती आ सके। तो आई थिंक इस वर्कशॉप में महीने में धीरे धीरे जैसे भी पॉसिबल है, माताओं को, पिताओं को, पेरेंट्स को धीरे धीरे आइडियाज देने की जरूरत है। सो वो एक, मुझे लगता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग का स्वरूप बदल के वर्कशॉप बन जाए और वहां पे लोग पार्टनरशिप करें और दोनों मिलकर तय करें कि क्या एक्टिविटीज हो सकती है। तो ये एक, मुझे लगता है, एक कॉन्क्रीट स्टेप होगा। और दूसरा, मुझे लगता है कि इसी प्रोसेस में स्कूल एक बात के लिए जाना जाता है, वो है रिपोर्ट कार्ड, असेसमेंट। मुझे लगता है कि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है। अगर आज मुझे मेरे स्कूल में, मेरे बच्चे के स्कूल में मुझे अगर बोलता है कि आपके बच्चे को बी ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला, या 60% मार्क मिले, तो उससे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है एक आम पेरेंट होने के नाते। लेकिन वही अगर स्कूल का टीचर मुझे ये बताए कि आपके बच्चे को रंग पहचानना नहीं आता है, या आपके बच्चे को अक्षर पहचानने में थोड़ी दिक्कत है, तो शायद मेरे जैसा पेरेंट जो प्रयास करना चाहता है वो कुछ कदम उठा सकेगा। तो मुझे लगता है कि कॉन्क्रीट स्टेप में सेकंड सजेस्ट यही करूंगा कि जो रिपोर्ट कम्युनिकेशन है, असेसमेंट का कम्युनिकेशन है, वो हमें स्कूलों को बदलना पड़ेगा। उसको ऐसी भाषा में लाना पड़ेगा जो आम आदमी, आम घर का व्यक्ति, दादी नानी समझ पाए, और वो एविडेंस बने फॉर एक्शन। या थैंक यू। जी जी जी, बट
सही। सो रिपोर्ट कार्ड, जो भी हम पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो पेरेंट्स के लेवल पे जाके कम्युनिकेशन भी उस लेवल पे होगा तो हम ज्यादा उस पे हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आउटकम्स अच्छे होंगे। थैंक यू स्मितिन जी। सो मैं वर्कशॉप को ये वाइंड अप करना चाहूंगी ये बोलते हुए कि अभी हमने पूरे चर्चा के दौरान यही देखा कि फैमिली या पेरेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा कुछ नहीं है, सिंपल है कि उसका मतलब है कि बिल्डिंग ऑथेंटिक एंड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड द स्टूडेंट्स अलोंग विद द स्कूल फॉर द सक्सेस ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग लाइफ। तो इन सब तीनों के बीच में जैसे ट्रायंगल बोलते हैं, पेरेंट है, कम्युनिटी है, स्कूल है, टीचर्स है और ये बच्चा खुद उसके लर्निंग से लेके, तो ये जब ये तीनों साथ में मिलके काम करेंगे तो बच्चे का जो लर्निंग लाइफ है, जो सेंटर में उसका लर्निंग लाइफ को फोकस करके हम करते हैं, वो अच्छा कर पाएगा। मैं आप सबका बहुत आभार मानना चाहूंगी, आप लोगों ने आपका टाइम दिया और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो सैटरडे है 3 से 5 बजे का टाइम एक झपकी निकालने का, बट वो नहीं करते हुए आए हैं, हम सबका साथ दिया है, तो आप सबके लिए भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रुति फीडबैक ले। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। Yes. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद कि आपने इस तरह की चर्चा शुरुआत करी है। आई थिंक ये आज की शुरुआत है। पेरेंट्स को एंगेजमेंट को लेके हमें और मिलके बहुत सारा काम करने की जरूरत है। जी जी पक्का। थैंक यू। सो अभी श्रुति आप फीडबैक फॉर्म सब शेयर करेंगे, सो पार्टिसिपेंट्स आप सबसे रिक्वेस्ट है, या श्रुति ओवर टू यू। Yes, I've shared the link to the feedback form in the chat box. So requesting all of you to take some time and fill up the form, because that would help us in getting your feedback and suggestions for organizing more such interesting and engaging webinars and sessions. Thank you to all our speakers for being a part of today's webinar. Thank you for taking the time out. Thank you, Ms. Dhanashree, for facilitating this discussion. It was so engaging. And I think some of the key points that have come from this discussion, I'd just like to reiterate them. That one is we need to tap parent potential. There are many ways to do this, and all these strategies have already been discussed, but we can do so by creating awareness, skill development for parents, establishing open and more transparent communication channels between parents, teachers, and the school system. And if we start looking at parents as leaders and as advocates and drivers of change, I think this is what we all need to consciously work towards. And I would like to, conclude with what Mr. Smithin said, that every parent, every family has the potential to help and aid the child's learning. What we need to do is to facilitate this process, to share ideas, to give thoughts, and share our skills, share knowledge, and also give them the confidence that this is possible. And just like Ms. Dhanashree said, this is not something very difficult. It's very simple if we go to see it. So thank you once again to everybody for being a part of this webinar. I think in the last 2 months, over the course of the 4-part webinar series that we've had, we've touched upon so many topics: quality of teacher and child relationships, the role that assessment plays in learning. We've also spoken about inclusive education and how can we promote more inclusive systems. And today we've spoken about parental engagement and ways in which we can further nurture and enhance this process. So these webinars are also going to be available on our YouTube channel, NGO Muktangan. So please do access all the other webinars as well if you could not participate in those. So you can see the webinars on our YouTube channel. Do stay connected with us. Please do like, share, and subscribe to our YouTube channel and our social media platforms. And please do feel free to share your feedback. The link is already given in the chat box. So your feedback and your comments will really help us to organize many more activities like this in the future. Thank you.